नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, इसी कामना के साथ। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द recombinant DNA technology, in which we have to its process, how we can get the piece of interesting gene on how we can capable to culture them in the way. But there is a one more topic, that is the bioreactors, means where we can going to be culture the such things, means where we can capable to develop the such process which can capable to develop those bacteria which are necessary for us to obtaining the different substances, even it is for culturing of the protein, even it is culturing for the insulin and so on, right? So there is a specific containers or bioreactors where this process can be done over there. So first of all we have to know what the bioreactors. We generally, bioreactors are the large volume vessels up to 100 to 1000 liter, which can be generally always have raw materials that may be converted into a specific product or our desirable product, or we can say directly individual enzymes by using of the microbial plants and animals and so human cells. So on the basis of that, generally these bioreactors are especially two types which are generally utilized. So first of all we have to know one, that these reactors should be provide the optimum conditions for the achieving the desirable product by providing the growth condition like the temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. Means generally bioreactors में क्या होता है, हम उस bioreactors में कल्चर मीडियम देते हैं और न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं. अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ करनी है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, जितना भी उसका न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल है, इट शुड बी ऑलवेज ओवर देयर, ताकि क्या हो, बैक्टीरिया की मैक्सिमाइज ग्रोथ उसके अंदर आसानी से हो जाए. इवनली वी कैन known about this growth of those bacteria. Generally they can be have these bacterial growth culture are especially two types. Number one is बैच कल्चर, नंबर सेकेंड वन इज कंटिन्यूस कल्चर. बैच कल्चर में क्या होता है, स्पेशली उसमें हमारी एक सिग्माइड ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की. मीन्स स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लोली होती है, लेकिन लेटर मिड फेज में इट कैन बी जस्ट लॉग फेज के अंडर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, और फिर से क्या होती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. कारण बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस जो आपके बैक्टीरिया होंगे दे कैन रिलीज द डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन विच वेयर इट कैन बी जस्ट डेड. बट ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस कल्चरिंग में मीडियम में हम एक तरफ से उसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं और दूसरी तरफ से उसमें बैक्टीरिया हमको कंज्यूम निकालते रहते हैं, जिससे क्या उसकी टॉक्सिसिटी रिलीज जाती है, कम हो जाती है, और उसके अंदर कल्चर मीडियम कंटिन्यू बना रहता है. इसलिए जो द ग्रोथ ऑफ दी जो कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर आपकी जे शेप ग्रोथ होती है. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशली अबाउट द bioreactors. Especially there are two types of bioreactors. Number one is simple stirred tank bioreactors, and second one the stirred tank bioreactors, right? But generally on the basis of their structures they are not different from each other. If we talk about the stirred tank reactor, it is usually a cylindrical structure, as you can see in the our diagrams, right? Especially you can just see in stirred tank reactors, it is a cylindrical or within a curved base, a facilitated mixing of the reactor containment. But how it is can always helpful for one, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, आखिर ये दोनों एक दूसरे डिफरेंस कैसे हैं, हाउ दे कैन वर्क डिफरेंटली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टाइल बायोरिएक्टर. कुछ नहीं है बेटा, एक सिंपल सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट? एंड इन दिस डायग्राम यू कैन जस्ट सी दिस इज द सिंपल स्टेट रिएक्टर. इसमें आप देख रहे हैं स्पेशली इसमें इम्पलर लगे हुए हैं, फ्लैट इम्पलर प्लेट्स लगे हुए हैं. जो सबसे पहला ब्लेड होता है दैट इज कॉल्ड द फोम ब्रेकर. फोम ब्रेकर इसलिए क्योंकि जब इसके अंदर हम एयर पास कराएंगे, इतनी सारी न्यूट्रिएंट मीडियम कराएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म डेवलप कर जाएगी. तो उस फॉर्म को ब्रेक करने के लिए ये फोम ब्रेकर ब्लेड्स लगे रहते हैं. साथ ही एज यू कैन जस्ट सीन ओवर देयर इज द एसिड बेस फॉर द पेज कंट्रोल. मीन्स यहाँ देयर इज अ पोर्ट, द डिफरेंट पोर्ट्स आर फाउंड ओवर देयर. तो एक एसिड बेस करेंगे एसिडिटी और बेसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें स्लाइज एयर को पासिंग कराने के लिए भी नीचे से आप पोर्ट देख रहे हैं, दिस इज डबलिंग ओवर देयर.
साथ ही उसको स्टीरिलाइजेशन कराने के लिए भी क्या डिफरेंट पोर्ट्स आर फाउंड ओवर देयर एंड जनरली यू मस्ट नोन दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर विच कैन बी यूटिलाइज ओवर देयर, राइट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो हमारे पूरे बायोरिएक्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जनरली यूज़ होता है। अब इसकी खातिर क्या है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा कर्ड होता है, मीन्स जनरली यू कैन जस्ट सी दिस बेस इज जनरली अ कर्ड बेस। इसकी वजह से इसमें मिक्सिंग कराना थोड़ा सा ईजी होता है। कारण क्या होता है, स्पेशली अगर मान लीजिए ये हम बायोरिएक्टर यूज़ ना करेंगे तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने मीडियम को यहाँ पर डाला, कल्चर बैक्टीरिया को, इट विल स्टार्टेड टू ग्रो एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और इसको पर्टिकुलर पोजीशन पे ग्रोथ करते समय ही ये जो बैक्टीरिया है इट कैन कैपेबल टू गिव सम स्पेसिफिक टॉक्सिक रिलेट, सो दिस impeller can be moved, and due to movement of this impeller the whole toxicity and the culture medium and all these airs and these substances can be easily mixed over in all throughout this बायोरिएक्टर। इसके अंदर आसानी से सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स हो जाती है, इसी वजह से इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन सेकंड वन जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है बायोरिएक्टर का, दैट इज कॉल्ड स्पर्ज्ड और स्पर्ज्ड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर। स्पर्ज्ड बायोरिएक्टर, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और इसका बेस जो है वो भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है अपॉन टू डिजाइन। इसमें बेस जो होता है वो स्पर्ज्ड स्ट्रक्चर होता है। कारण क्या है, इसके बेस में यहाँ पर बेस में स्पेशली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना रहता है, राइट, जिसको हम कहते हैं स्पार्ज्ड। बिकॉज स्पार्ज मीन थ्रू दिस स्पार्ज दे हैव अ वेरी माइन्यूट होल्स इन देम, राइट। इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स रहते हैं जिसकी वजह से व्हेनेवर एयर कैन बी पासेस फ्रॉम हेयर, जब यहाँ से एयर को ऑक्सीजन को पास कराया जाता है तो बड़ी स्पीडली फास्टली बहुत तेज़ी से एयर क्या होती है इसके अंदर से ऊपर को निकल के जाती है। और आप देख रहे हैं इसमें मिक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पेलर नहीं लगे हुए हैं, सिंपली एक रॉड है विच कैन बी जस्ट बॉन्ड ओवर देयर टू मिक्सिंग ओवर देयर, राइट। एंड अब सपोज इस पास की कंडीशन में क्या है, जब यहाँ से गैस पास होगी तो इसमें स्पेशली क्या होता है, इट कैन कैपेबल टू मिक्स द मैक्सिमम, जो आपके यहाँ से एयर पास होगी तो एयर बबल्स बनेंगे और एयर बबल्स बनने की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी तो दिस बबल्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या होगा, इन जो जितने बबल्स निकल के जाएंगे तो उसके दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया, उनके पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है ताकि एयर उसमें मिक्स हो जाए। अब इसको स्पर्ज्ड क्यों कहते हैं, स्पर्ज्ड पता इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर, जब ये बबल्स जब एयर बबल्स हमारी स्पेशली ऊपर को जाएगी तो जो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहा है इसमें बना हुआ, इसकी वजह से जो एयर यहाँ पर होगी, सपोज हम उसको मान लीजिए ब्लू कलर इसलिए कलर से करते हैं, तो जो एयर होगी दैट एयर कैन बी ऑल्सो ट्रैप विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, स्पर्ज्ड के स्ट्रक्चर से बन जाएगी, जिसको आपने यू हैव सीन ओवर देयर, दैट इज नोन एज गैस एंटरमेंट। मीन्स हेयर द एयर कैन बी ट्रैप्ड, यहाँ पर क्या होगी, जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, तो उसी को कहा जाता है क्या, गैस एंट्रैप्ड। सो स्पेशली इन दिस कंडीशंस दे कैन बी इजी टू ग्रो, और जनरली जो भी बैक्टीरिया का मीडियम यहाँ पर ग्रोथ करेगा वो आसानी से इसके अंदर मिक्स होता रहेगा, जिसकी वजह से हम आसानी से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इफ वी कैन, यू ऑल मस्ट नोन दैट जनरली दिस ऑल contains the different structures things, especially we can say an agitator system, an oxygen delivery system, foam controller system, temperature controller systems, a pH controller system, and sampling port of the withdrawal culture and periodically. Means there are the different parts through which we can capable to get all these substances from these processes only from the bioreactor. So especially जो CBSE में हमारे पास आता है क्वेश्चन, इनका डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होता है या फिर इनका डायग्राम बनाने के लिए आता है। सो स्टूडेंट यू मस्ट ट्राई टू मेक देयर डायग्राम्स। देन देयर लास्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल you must know what about the downstreaming, but before that you must know the another process that is called the biosynthetic phase.
right? Means what is that biosynthesis? The all the process which can be done before this bio downstreaming process means up to the culturing. जब तक हमने बायोसिंथेटिक फेजेस के अंदर देखा, यानी कि बायो रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, ये कल्चरिंग की प्रोसेस होती है, तो यहाँ तक की प्रोसेस को बोला जाता है क्या, अपस्ट्रीम प्रोसेस, राइट. बट आफ्टर दैट जब हमारा सारा सब्सटेंस तैयार हो जाता है, उसके बाद टू बी हैव टू जस्ट गेट टू रिकवर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स. मीन्स जितना भी हमारे रिएक्टर्स के अंदर मटेरियल बनाया है उसको वहाँ से सेपरेट करना, प्यूरिफिकेशन करना वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीमिंग. वी कैन डायरेक्टली से मीन्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द बायोरिएक्शंस, और बायोरिएक्शंस दे कैन बी just subjected to series of, they can be collected in a particular manner in different step by step. So first of all there is the separation of the desired product, means we can separate out the desired product, and after that they can be purified, and after they can be this. अगर हमने प्यूरीफाई कर लिया, प्यूरिफिकेशन के बाद उसको हमें लंबे समय तक रखना, तो इट शुड बी एडेड सम प्रिजर्वेटिव्स, राइट. और प्रिजर्वेटिव्स के बाद भी इट शुड बी ऑल्सो क्लिनिकली ट्रायल, और क्लिनिकली ट्रायल के बाद इट कैन बी रिलीज इनटू द मार्केट. सो ऑल दीज स्टेप्स which can be done after the upstream process, right, these all are known as the biosynthetic processes over there. So this is the main conditions through which we can capable to understand about the whole process. So students, you must prepare the differences between the simple stirred tank bioreactors and spudged tank bioreactors. For in the starting I have told you some special thing that how this can be always capable to done in that particular condition. So you must know that especially these containers, or these containers can all have the specific nutrient medium for the bacteria, or due to which the bacteria can be capable to grow on. Evenly in these tankers, in these bioreactors, we can also put the inoculum. Inoculum means, I think everybody know, inoculum means हम थोड़ा सा वो बैक्टीरिया जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसको इंट्रोड्यूस कराने की वजह से क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाती है. लेकिन उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के समय दोज बैक्टीरिया कैन कैपेबल टू सिक्रीट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा. दैट्स वाई वी नीडेड द सच टाइप ऑफ बायोरिएक्टर स्ट्रक्चर्स. सो दीज स्ट्रक्चर्स, राइट, इसकी जो प्लेट्स होते हैं, जो इम्पेलर होते हैं, दे कैन कैपेबल टू मिक्स देम विद एयर, जो भी हम, क्योंकि बिकॉज वी कैन सप्लाई द स्टेराइल एयर और द फ्रेश एयर, बिकॉज दिस ऑल बैक्टीरियाज आर द एरोबिक बैक्टीरिया. तो उसकी वजह से हम आसानी से बैक्टीरिया का इन कल्चर्स मीडियम में ग्रोथ करा करके विद द हेल्प ऑफ दिस different bioreactors we can capable to get them properly, right. and अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है इसके अंदर, तो वो भी क्या होगी, वो भी दो तरीके से होती है. एक बैच कल्चरिंग मैकेनिज्म होती है, कंटिन्यूस कल्चरिंग मेथड. जो बैच कल्चरिंग मेथड में होती है वो ग्रोथ क्या होती है, जनरली हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन बी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे ग्रोथ करेगी. अगर हम केवल ग्रोथ की ही बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो सिंपली यू मस्ट नो in batch conditions you must know about this one, like this growth, that is sigma growth, as I have already explained you. इसमें क्या होगा, जनरली सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज द ग्रोथ रेट ओवर देयर. तो ग्रोथ पर टाइम के यूनिट के बेसिस पे देखा, तो स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया होगा, एक बैक्टीरिया होगा, एक के 2 बनेंगे, 2 के फिर वो 4 बनेंगे, 4 के फिर वो 8 बनेंगे. जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी. लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिटेशन के बाद जब वहाँ इतनी सारी बैक्टीरिया होंगे तो उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, जिससे उनकी क्या ग्रोथ भी आपकी जाएगी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, या स्टेशनरी पोजीशन में आएगी, या प्लेटी पोजीशन में आ जाएगी. ये प्लेटी पोजीशन रहेगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा, ये आपका लैग फेस रहेगा. यानी कि ये लैग फेस, ये लॉग फेस और ये प्लेटी फेस, ये स्पेशली आपके. लेकिन जो कंटिन्यूस वाली में रहती है, तो कंटिन्यूस वाली में सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि जनरली सपोज दिस इज अ कंटेनर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया कल्चरिंग हो रही है, इसमें हम इसमें से कंटिन्यू सेपरेट आउट भी करते रहेंगे विद मीडियम्स, एज वेल विद मीडियम से इसको एंट्री भी कराते रहेंगे टाइम टू टाइम. सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन दैट कैन बी ऑलवेज ग्रोथ वेरी फास्टली और कंटिन्यूसली. इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस द ग्रोथ रेट इज जस्ट लाइक दिस,
वहाँ पर आपकी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि वहाँ पर से ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और चूंकि सेपरेट आउट होते जाएंगे इसलिए वहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ पाएगी, जिस वजह से वी कैन कैपेबल टू डू द सर्फेस। आफ्टर दैट वी कैन कैपेबल टू यूज or separate out these all bacteria with the help of the downstreaming process. So students, you must complete up to here and complete note. If still you have any problem, you can contact me later. Thank you.